Hello everyone. It reminded me, it's just like I was padded up at the backstage with my pad, and as I walked out the back, it reminded me of the clap in the stadium. So it did two things. First, it put a lot of pressure on me कि रन बनाने हैं, क्योंकि नहीं तो वापस जब आएंगे ना तो वो क्लैप्स अलग हो जाते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत खुशी हुई आप लोगों से दूर से मिलके. पास तो अभी तक पहुंचे नहीं है. बहुत खुशी हुई दूर से मिलके. मुझे पता चला कि आप लोग इंडिया के हर कोने से आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए यहाँ पे. Extremely grateful and extremely honored that you've taken all the trouble to come from wherever you are for this event. You're a very important part of the Class family, probably the most important part. तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब कोई टीम आगे बढ़ता है, मैं भी किसी टीम का कप्तान था, मेरे भी कभी कोचेस हुए हैं, तो ये सब ना एक टीम गेम है. जब आगे बढ़ते हो, कोई चीज़ जब आगे बढ़ती है, और मैं आपके जो यहाँ पे जो आपके जो दो ओनर्स नहीं, दो कोलीग्स बोलूँगा, मुकुल और भास्वत से मैं बात कर रहा था यहाँ आने से पहले कि ये आपकी ब्रांड और आपकी ये जो एसोसिएशन है वो कैसे चल रहा है. कितने कोचेस, कितने टीचर्स आपके साथ जुड़े हैं, कितने यंग स्टूडेंट्स आप पिछले 2-3 साल में आपके साथ जुड़े हैं. तो नंबर्स देख के मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा. और मैं ये कहता हूँ कि ये सब होते हैं आपके एफर्ट्स के लिए. It is because all the efforts you put in and all the time you give to yourself, the teachers who are here, and I presume majority of them here are teachers, isn't it? तो आप जो, और हर किसी की ज़िंदगी में आपके टीचर्स के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. क्योंकि मैं समझता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जब ये कोई भी लड़का या लड़की छोटा होता है, वो सबसे ज़्यादा समय अपने स्कूल और अपने टीचर्स और अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ही बिताते हैं घर से. सो एज मच एज योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली हैज़ and a contribution to your life and your career, your teachers actually have more. Your teachers actually make you understand, learn and teach life more than even your family. And I was young, I'm still young, but I was younger. I was younger few years ago, and I can tell you, whatever I have achieved, wherever I have finished in my professional life as a cricketer, my coaches, my teachers had the biggest influence in my life. I studied in St. Xavier's College in Calcutta, St. Xavier's School, and in those days, online education, edtech platforms did not exist. So we had to go to school and college and learn, study, get educated. And the best part or the worst part of our careers when we were young was that technology was not as developed and as improved as it is in the modern day. So we got a lot more time to go to college. We got a lot more time to spend time with teachers. Not only study, not only pick the mathematics, geography, literature, history books, but at the same time got to play the sport. There was no mobiles. So just like as I see my lovely daughter spending a lot of time on her mobile, trying to see the world, we did not have that, and that probably gave us more time to play the sport, to study and be where we are today. So for me, I still remember when I talk about teachers, and I'm still in touch with them. Both of them have grown older. One is in the late 70s and one is in the late 60s, and I still meet them. They come and see me. आके मिलते हैं मेरे साथ. मैथ्स और मुझे बंगाली पढ़ाते थे. जब भी उनके साथ में अभी मिलता हूँ तो आँख में ना वो रोशनी आ जाती है कि यार इनके साथ तो पूरी ज़िंदगी बिताया आपने. आप जब फुटबॉल खेलते थे, मैं जब क्रिकेट से पहले स्कूल में पढ़ता था, मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था. तो यही टीचर्स मुझे दिन में 12 से 2 बजे तक मैथ्स, इंग्लिश, बंगाली पढ़ाते थे. और वही टीचर्स 3 बजे के बाद जब छुट्टी होता था और फुटबॉल खेलने का मौका मिलता था, तो ये टीचर्स आपके साथ वो बॉर्ड लाइन पे खड़े होके आपके लिए तालियां बजाते थे यार. तो ये आपकी सिर्फ पढ़ाई, आपकी एजुकेशन की डेवलपमेंट नहीं करते हैं,
ये आपकी पूरी कैरेक्टर, आपकी पूरी ज़िंदगी की डेवलप करते हैं। और मैं उनके नाम आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक है आनंद मजूमदार जो मैथ्स पढ़ाते थे हमें, और एक था मिस्टर समाजपति, वो धोती पहन के आते थे ना, पुराने दिन की टीचर, बंगाली पढ़ाते थे हमें, और धोती और कुर्ता पहन के आते थे और सबसे ज़्यादा चिल्लाता था बाउंड्री लाइन पे। जब मैं बॉल हाफ लाइन में, तब क्रिकेट नहीं खेलता था, जब बॉल हाफ लाइन पे पकड़ के दूसरे गोल की तरफ जाता था स्टूडेंट्स के साथ, वो सबसे ज़्यादा शोर मचाते थे कि गोल करने हैं। और वही 12 बजे जब मैं होमवर्क करके नहीं आता था, मुझे कहता है कि चलो क्लास के बाहर निकलो, नहीं तो तुम कल होमवर्क करके फिर नहीं आओगे। तो ये डेवलपमेंट देते हैं आप लोग, ये जिंदगी बनाते हैं आप लोग यंग स्टेज में। और किसी भी स्टूडेंट का, मैं भी स्टूडेंट था एक दिन, और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोगों का स्टूडेंट अब बनते हो, डिफरेंट टीचर्स का स्टूडेंट बनते हो, ये आपके साथ जिंदगी भर रह जाता है। और जितने भी बड़े आप बन जाओ ना, जब आपके टीचर्स, आपके कोचेस आपके घर में आते हैं, तो एक अजीब सा वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग होता है यार कि इस आदमी के साथ जिंदगी गुजारा है मैंने। सो फॉर मी द कोचेस, योर टीचर्स एक्चुअली हेल्प इन करियर बिल्डिंग मोर देन एनीबॉडी एल्स। जब बड़ा हुआ, जब क्रिकेट खेले देश के लिए, जब मेरे को अभी भी याद है क्लास 10 पास हुआ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू बहुत शरारती है, तू घर में बैठा रहेगा तो सबको तंग करता रहेगा, चल मैं तुझे क्रिकेट में खिलवा देता हूँ। कोचिंग कैंप में डाल दिया। उससे पहले फुटबॉल ही खेलता था, तो कोचिंग कैंप में डाल दिया। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक मौका मिला घर से भागने का, क्योंकि जब भी घर में आओ तो माँ किताब दे देती थी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और मैथ्स की पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम क्रिकेट में ही लगे रहो, 3 घंटा क्रिकेट खेल लो, 2 घंटा माँ को बोलो कि टीचर्स जो कोचेस है आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, तो जब आते हो थक जाते हो तो माँ थोड़ा सा पढ़ाई करके सुला देगा। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं उस समय क्लास 10 पास किया, तो 3 महीने छुट्टी थी बोर्ड एग्जाम्स के बाद। तो मेरे पिताजी कहा कि चलो तुम ट्रेनिंग करो। अशोक मुस्तफ़ी सर थे जो अभी है नहीं इस दुनिया में, उनको बोले कि आप इनको क्रिकेट खिलाओ, इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तब पता नहीं था कि आगे देश के लिए कभी खेलेंगे। तो उनके पास गया तो 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करता गया, अच्छा लगता गया। वो इंस्पायर करते थे कि ऐसे खेलना है। उस समय इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता 83 में, एग्जैक्टली 83 जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो उसी से किया कि अगर कपिल देव गावस्कर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो देश को आगे ले जा सकते हैं तो हम भी देश को आगे ले जा सकते हैं। तो फिर गेम शुरुआत हुई, फिर अलग अलग कोचेस मिले, मुस्ताफी सर मिले जो आपको फ्रंट फुट, बैक फुट, कवर ड्राइव ये सब खेलने सिखाया। फिर बड़े स्टेज पे गए, अंडर 15, अंडर 19। पहली बार जब गावस्कर और कपिल देव से मिला, मुझे अभी भी याद है जब व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया जब गए ना 1992, छोटा सा 17 ईयर ओल्ड आई वाज, एंड जैसे ही फ्लाइट में उतरे तो यहाँ गावस्कर दिखे, वहाँ कपिल देव दिखे, वहाँ अजहरुद्दीन दिखे, वहाँ पे छोटा तेंदुलकर दिखा। तो थोड़ा तो वो भी 17 था, हाइट में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, 17 साल का था। बट ऐसा नहीं लगा कि ये 30 टेस्ट खेल चुका है तब तक। तो जब गए फ्लाइट में चढ़े तो ऐसा लगा कि यार ये कहाँ पे आ गए, इतने बड़े लोग के बीच में अभी तुमको मौका मिला है कि तुम खेल पाओगे कि नहीं। तो फिर मुझे अभी भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो हमारा कोच था अब्बास अली बेग, बहुत वेल मैनर्ड और अच्छे इंसान थे। तो पर्थ में पहुंचे पहले दिन, तो होटल में पहुंचे तो ऐसा लगा था कि आई एम लॉस्ट इन विल्डरनेस, कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग जहाँ से देखो तो एक लेजेंड उतार रहे, कभी वेंगसरकर, कभी अजहर, कभी गावस्कर, कभी कपिल देव। तो मैंने कहा इनके साथ झेलेंगे कैसे। तो फिर अब्बास अली बेग ने कहा कि तुम इनसे सीखो, तुम ड्रेसिंग रूम में जब रहोगे देखो ये कैसे बड़े बनते, कैसे प्रिपेयर करते अपनी मैच के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, और उससे सीखो। तुमको शायद इतना मौका नहीं मिलेगा इस सीरीज में क्योंकि तुम 17th 18th मेंबर हो, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, बट ये सीरीज तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे अभी भी याद है एक मैच खेला था पूरे 3 या 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया। एक समय ऐसा लगा था कि यार प्रैक्टिस में ना बैट लेके जाएंगे नहीं क्योंकि मौका तो मिलेगा नहीं, तो जूते उठा के लेके जाओ, स्पाइक्स